Good morning, my lovely students. How are you? I hope you all are fit and fine and done your work properly. I, Jyoti Magu, your maths teacher. I hope you enjoying your maths class. So now our topic is problem questions. So we take a quick revision of our statement or problem question of chapter fractions. Let's start. At a gaming station, 1/2 of the games are racing games. Okay, among these racing games, 2/5 are racing games. What fraction of games at the gaming station are कार रेसिंग गेम? ओके, देखिए 1/2 ऑफ द गेम्स आर रेसिंग गेम्स. बच्चे बहुत सारी गेम्स हैं गेमिंग स्टेशन में, उसमें 1/2 कौन सी गेम है? रेसिंग गेम्स. कौन सी गेम है? रेसिंग गेम्स. ओके, अमंग दीज रेसिंग गेम्स, बच्चे ओवरऑल में से रेसिंग गेम्स कितनी हैं? 1/2. देन among these racing games 2/5 are car racing games. बच्चे रेसिंग गेम्स में से भी, रेसिंग गेम्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग, जस्ट लाइक दैट. रेसिंग गेम्स में भी जो रेसिंग गेम है 1/2, उसमें 2/5 पार्ट जो है वो कार रेसिंग के हैं. ओके, 2/5 are car racing games. What fraction of games at the gaming station are car racing game? Okay, what fraction of the games at the gaming station are car? What we have to find? The car racing game. The car racing game fraction are 2/5 of the total racing game fraction. So our solution, we have to start that gaming station racing games are 1/2. okay, that we have given. Then among these means बच्चे among these किसके लिए यूज किया गया है? रेसिंग गेम्स के लिए. among these कार रेसिंग गेम्स आ कितनी है कार रेसिंग? 2/5 आर कार रेसिंग. बेटा यहाँ पे बोल रखा है among these, इट मीन्स 2/5 ऑफ 1/2. कार रेसिंग गेम्स क्या है? 1/2 का 2/5 है. ओके, देन व्हाट वी हैव टू द फ्रैक्शन ऑफ द गेम्स एट द गेमिंग स्टेशन आर कार रेसिंग गेम. 2/5 ऑफ रेसिंग गेम्स. ओके, among these car racing games are 2/5 of racing games. Then racing games are 2/5 of racing games. racing games कितनी है? 1/2. In the first starting multiplication, we are discuss about that of. Of means multiplication. So here we put 2/5 multiply 1/2. It's our simple question of multiplication. Firstly, we cut out that 2 ones are 2, 2 ones are 2. In the numerator 1 multiply 1 and in denominator 5 multiply by 1. So our answer is 1 ones are 1 and 5 ones are 5. Okay, I repeat this again in the simple way, that what we have to find that the total racing games are 1/2 and कार रेसिंग गेम्स में से कार रेसिंग गेम्स कितनी है? 2/5. सो कार रेसिंग गेम्स आर 2/5 ऑफ car racing games. Okay, so what in simple way we find? 2/5 of
total, that is 1 by 2. So of means multiplication, 2 by 5 multiply 1 by 2 and our answer is 1 by 5. So we write here 1 by 5 are car racing game among racing games. Students, you have to write down all these statements in your notebook. I know you don't write all these statements, just do that simple in question in simple way. You have to write all these statements also and I check it. So our next question is, the product of two fractions is 12 into 1 by 2. Then if one of the fraction is 3 into 1 by 3, find the other fractions. बच्चे the product given है हमें, two fractions की product given है, that two fractions are given that the product is 12 into 1 by 2. If one of the fractions is 3 into 1 by 3, find the other fraction. We have to find the another fraction. So start our solution. Product of two fractions are 12 into 1 by 2. Okay, and what we have to give on that one of the fraction is 3 into 1 by 3. Okay, one of the fraction is 3 into 1 by 2. बच्चे जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो टू नंबर्स हैं, one number and another number. Okay, and the result we have found that is the product of that two numbers. So in that question हमें one number given है, second number we have to find out, और हमें क्या गिवन है, जो प्रोडक्ट है उन टू नंबर्स की फ्रैक्शंस की वो गिवन है. अब थ्री थिंग्स में से हमें टू थिंग्स तो गिवन है. अब फर्स्ट नंबर इज गिवन and the product of that two numbers is given. We have to find out that another number. Okay, so that हम यहाँ पे find out करेंगे. देखिए बच्चे, हमने second number find out करना है, find the other fraction. तो हम let करेंगे, let first number हम उसको a let कर लेंगे. Okay, and let second number दैट इज, इसको हम b लेट कर लेंगे. ओके, हमने इसे a लेट किया और b लेट किया. हमने यहाँ पर टू नंबर्स को लेट किया कि जिनके हम प्रोडक्ट करें तो हमारा जो आंसर आए वो क्या आए, 12 इंटू 1 बाई 2. अब अच्छा देखिए, a और b में से हमने दो नंबर सेलेक्ट करे, जिसमें से तो वन नंबर तो हमें गिवन है. क्या गिवन है? इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 इंटू 1 बाई 3, इट मीन्स जो ये फर्स्ट नंबर है वो गिवन है, वो क्या है, 3 इंटू 1 बाई 3. ओके, ये हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट द अनदर नंबर दैट इज b. तो बच्चे देखिए, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दैट अवर वे इज टू a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, और वी कैन से दैट a b. ओके, ठीक है. अब हमें देखिए a की वैल्यू गिवन है. क्या है a की वैल्यू? 3 इंटू 1 बाई 3. b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और जो प्रोडक्ट है वो भी हमें गिवन है 12 इंटू 1 बाई 2. ओके, देखिए हमें गिवन है फर्स्ट नंबर की वैल्यू, सेकेंड नंबर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और प्रोडक्ट भी है जो इन टू नंबर्स का वो भी हमें गिवन है, जो टू फ्रैक्शंस का सम है वो भी हमें गिवन है 12 इंटू 1 बाई 2. अब हमें इसे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. देन डेनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय द होल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डेनोमिनेटर. यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दैट इज b. सो हेयर ऑल्सो
2 denominator is multiplied by the whole number plus numerator divided by 2. Okay, then 3 3s are 9, 9 plus 1 10, 10 by 3 is multiplied by b is equals to 12 2s are 24, 24 plus 1 25 divided by 2. बच्चे जो हमारी फ्रैक्शन तैयार हुई है वो है 10 by 3 is multiplied by b is equals to 25 by 2. ओके, दैट इज अवर फ्रैक्शन. अब हमें यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बच्चे अब आपको पता है एक नंबर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है अगर और यहाँ पर इक्वल का साइन है और अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, अगर हम इसको अनदर साइड में लेकर जाएंगे तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाता है? डिवीज़न में चेंज हो जाता है. किस में चेंज हो जाता है? डिवीज़न में चेंज हो जाता है. देखिए क्योंकि हमें यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ओनली यहाँ b को रखेंगे, जो नंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली सोल्व करेंगे. ओके, देखिए अब हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम जस्ट b को एज इट इज पुट करेंगे. 25/2 हमारे पास यहाँ पर है और अभी मैंने आपको बताया कि when we interchange the position of the number, if the two numbers are in equal then the signs, if there is a multiplication then here the division is used. बच्चे अगर यहाँ पर प्लस या माइनस होता, अगर प्लस होता तो इक्वल में जाके क्या साइन हो जाता? माइनस का. अगर यहाँ पर माइनस होता तो इक्वल में क्या साइन हो जाता? जाके प्लस का साइन होता. बच्चे अब ये मल्टीप्लिकेशन में है. कौन से में है? मल्टीप्लिकेशन में है. और मल्टीप्लिकेशन का साइंस जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो कौन से साइन में चेंज होगा? डिवीज़न में चेंज होगा. कौन से साइन में चेंज होगा? डिवीज़न में चेंज होगा. डिवीज़न 10/3. ओके, डिवीज़न में चेंज हुआ. अब बच्चे ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नॉर्मली डिवीज़न क्वेश्चन, जस्ट लाइक दैट, टू डू दिस क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट डिवीज़न. फर्स्टली वी सॉल्व दैट multiplicative inverse of 10/3 is 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. डिवीजन के लिए हमें फर्स्टली इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए होता है. सो द इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10. ओके, सो वी पुट हियर 25/2. That multiplicative inverse, multiplicative, put multiply sign, inverse, put the inverse, that is 3/10. Okay, now solve this question just like as multiplication. Then firstly we cut these. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Okay, so our numerator is 5 multiplied by 3 and denominator is 2 multiplied by 2. 5 3s are 15, 2 2s are 4. So the b, बच्चे हम यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो बच्चे b की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 15/4. I repeat this question again. Product of two fractions are given. Product and one number is given. We have to find out the another fraction. So we let a number a, that is the first fraction, that is 3 into 1/3, and the another number that is b we have to find out. So the product of a into b is equals to ab. Then अब जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, a नंबर हमें गिवन है, b की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इक्वल में क्या आता है? इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि हमें गिवन है. दैट्स हमने फर्स्टली वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ नॉर्मल फ्रैक्शन, देन सोल्व दिस इक्वेशन अप टू दैट. ओके, अब मैंने बच्चे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट डाउन दैट है मल्टीप्लिकेशन साइन वी हैव टू कन्वर्ट दैट इक्वल इंटरचेंज दैट पोजिशन. सो the sign is changed here, multiplication, and here we used division. Okay, then यहाँ पर डिवीजन हो गया. अब हमें डिवीजन के मेथड से सोल्व करेंगे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3. इनवर्स ऑफ 10/3 is 3/10. Then 25/2 multiply 3/10. We cut this and multiply and our answer is 15/4. That is the second fraction is 15/4. बस जब हम इस 15/4 को नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे कन्वर्ट? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. अब 15/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? डिवाइड करेंगे 15 को 4 से.
4 3s are 12 and our remainder is 3. Our remainder is 3. How we write this statement? 3 into 3 by 4, that is our second fraction or the second number. Okay. So our next question is, there are 24 girls in a class. If 3 by 5th of the class comprises girls, then what is the total strength of the class? सो बच्चे 24 गर्ल्स इन ए क्लास, यहाँ पर हमें ओनली गर्ल्स बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 24 हैं, और हमने क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. बच्चे स्टूडेंट्स इंक्लूड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बट हियर only the value of girls are given, that 24 girls are in a class, and the strength we have to find out the strength of the class include boy plus girl. So if 3 by 5th of the class comprises girls, हमें ये भी given है कि जो girls है वो 3 by 5th हैं of a class. It means जो class में जितने भी student हैं girls, उनका 3 by 5th हैं, that is the total strength. Okay. So let's start our question. Solution is made here with the statement of that number of girls in a class that is 24. Okay, then 3 by 5th of the girls comprises girls. Class comprises girls. कितनी गर्ल्स हैं बेटा? जो 3 by 5th है वो किसका है? टोटल का है. 3 by 5th of total strength. 3 by 5th of total स्ट्रेंथ. बेटा जो गर्ल्स की हमें यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन है कि जो गर्ल्स हैं वो 3 by 5th है किसके? क्लास का. इट मीन्स जो 3 by 5th है टोटल स्ट्रेंथ की 3 by 5th कितनी है? गर्ल्स से हैं. तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. अच्छा, अब हमने टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. ओके, देखिए हमें ओनली क्लास की गर्ल्स गिवन है कि गर्ल्स कितनी है? 24, और हमें दे रखा है कि 24 जो गर्ल्स हैं वो 3 by 5th है. ओके, 3 by 5th है. इट मीन्स तो हम क्या करेंगे? 24 क्या है? गर्ल्स हैं. डिवाइडेड क्या करेंगे? 3 by 5, दैट इज दी 3 by 5th ऑफ क्लास. दैट इज गर्ल्स. इट मीन्स जो 24 गर्ल्स हैं वो क्या है? 3 by 5th है. 3 by 5th पार्ट है किसकी? क्लास के हैं. ओके, सो बच्चे देखिए 24 डिवाइडेड बाय 3 by 5. ओके, अब यहाँ पर डिवीजन का साइन है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 by 5. क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 by 5 इज 5 by 3. We use here 24 is multiply, use multiply sign because we take a multiplicative inverse and we use inverse here 5 by 3. So our next step is here multiplication sign. We cut both these. 3 ones are 3, 3 8s are 24. So our numerator is 8 multiplied by 5 and our denominator is 1. 8 5s are 40. It means 40 students are in the class. The strength of the class, we write a line in the last. The strength of the class is 40 students. Okay,
आई रिपीट दिस अगेन, बच्चे हमने यहाँ पर डिवीजन क्यों किया, क्योंकि हमें गर्ल्स की वैल्यू गिवन थी कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितनी है, और हमने फाइंड आउट जब हमें एक कुछ पार्ट की वैल्यू गिवन हो और हमें टोटल वैल्यू निकालनी हो, यू हैव टू रिमेंबर दैट जब हमें एक पार्ट की वैल्यू गिवन हो और उसके फ्रैक्शन गिवन हो कि उसकी फ्रैक्शन ये है और हमें टोटल फाइंड आउट करना हो, तो दैट इन दैट केस वी डिवाइड दैट पार्ट विद द फ्रैक्शन ऑफ दैट सेम पार्ट। अब देखिए यहाँ पर गर्ल्स की वैल्यू गिवन थी और गर्ल्स की ही फ्रैक्शन गिवन थी, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ दैट नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज दे रखा होता और फ्रैक्शन नंबर ऑफ गर्ल्स की दे रखी होती तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, हम सेम पोजीशन लेंगे। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू गिवन है तो फ्रैक्शन भी नंबर ऑफ गर्ल्स की ही गिवन होगी। इन दैट केस वी डिवाइड द नंबर ऑफ गर्ल्स विद द फ्रैक्शन ऑफ दैट नंबर ऑफ girls. I hope you understand all this question. Thank you. Have a nice day.